In this video, we're going to discuss about chemistry of lanthanide elements. It belongs to section A. So before switching on to lanthanide elements, let's talk about F block elements because lanthanide elements also belong to F block elements. So F block elements are those elements in which last electron enters F orbital or anti-penultimate energy level. अगर आपके एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एफ ऑर्बिटल में जा रहा है या एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल में जा रहा है, यू कॉल दोज एलिमेंट्स एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. F block elements are also called as inner transition elements. Why? Because F block elements are placed inside the D block elements. अगर आप periodic table को ध्यान से देखोगे, you will observe कि F block elements are placed within the D block elements, and D block elements are known as transition elements. So within the transition elements, अगर आपके पास F block elements present हैं, so we call them as inner transition elements. F block elements consist of two series of elements which is placed at the bottom of the periodic table. One series is known as lanthanides and second series is known as actinides. Lanthanides involve filling up of 4f orbitals, whereas actinides involve filling up of 5f orbitals. This is the basic difference between lanthanides and actinides. So let's start with the lanthanides. So first property we're going to discuss is the general characteristics of lanthanides. So general characteristics में first property आपके पास आती है electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, lanthanide elements, so you are able to solve a lot of conceptual questions. So make sure कि you learn all the 14 elements name, their symbol and their electronic configuration. So lanthanides basically consist of series of 14 elements starting from cerium, that is atomic number Z is equal to 58, to lutetium Z is equal to 71. वैसे लैंथेनाइड्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ लैंथेनम, बट लैंथेनम को यहाँ पे इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया गया क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में नहीं जाता, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 5d में. सो इस सीरीज़ में लैंथेनम को इसलिए ही नहीं इन्वॉल्व किया गया बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग अप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स. सो स्टार्टिंग विद एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 58 सीरियम, टू ल्यूटेटियम Z इज इक्वल टू 71. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज xenon 4f में 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 5d में 0 to 1 आ सकते हैं, एंड 6s2 s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल्ड होते हैं. सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द 14 एलिमेंट्स which comprises about the lanthanide ions. So first is with atomic number 57 lanthanum, second elements is cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium. So these are the 15 elements. You have to learn the names, you have to learn the symbols. So let's talk about the electronic configuration. So first is lanthanum. If you can see here the electronic configuration xenon 4f0, इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा xenon के नोबल गैस कंप्लीट करने के बाद, कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो f में नहीं गया है, इट गोज इन 5d. So 5d1 and 6s2. When we switch on to cerium, you will observe कि जो इलेक्ट्रॉन D में था वो भी F में आ गया एंड जो नेक्स्ट स्टेप का एडिशन करनी है इलेक्ट्रॉन की वो भी F में आ गया. सो सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है xenon 4f2 5d0 and 6s2. देन praseodymium नेक्स्ट 4f3, rest is same. neodymium 4f4, promethium 4f5, samarium 4s6 and europium 4f7. यहाँ तक कन्फिग्रेशंस अगर आप ध्यान से देखोगे सो इट इज़ क्वाइट सेम. सी अब नेक्स्ट व्हेन वी स्विच ऑन टू गैडोलिनियम, यूरोपियम तक तो ठीक है, गैडोलिनियम तक जब हम गए तो गैडोलिनियम के बाद 4f7 ही रहा बिकॉज एफ में बेटा एफ ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम ऑक्यूपाई 14 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे एफ ने यूरोपियम के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं, सो इट बिकम्स हाफ फिल्ड एंड यू नो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन इज द स्टेबल कन्फिग्रेशन. तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो डी में चला गया है. इन केस ऑफ गैडोलिनियम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स डी. सो 4f7 5d1 एंड 6s2. अगेन व्हेन यू स्विच ऑन टू टर्बियम, टर्बियम के केस में क्या होगा,
अब एक तो डी वाला इलेक्ट्रॉन एफ में आ जाएगा, 5d वाला 5d ज़ीरो हो गया, और एक नेक्स्ट स्टेप वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा। सो 7 से क्या हो गया ये 9, और d 1 से क्या हो गया 0, सो 9 हो गया। टर्बियम के बाद डिस्प्रोसियम 4f10, बाकी सेम है बेटा। देन हॉल्मियम 4f11, इर्बियम 4f12, ये टर्बियम 4f13, 14। यहाँ पर टर्बियम तक आते आते बेटा क्या हो गया, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। एंड फुली फिल्ड यू नो कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल है। सो एज ए रिजल्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो वो किस में जाएगा, डी में। तो इन केस ऑफ लुटेटियम 4f14 ये फुली फिल्ड हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5d1, 6s2. So this is the electronic configuration. You have to remember the names, symbols and electronic configuration. क्योंकि बेटा बहुत सारी जो conceptual questions हैं they are based on electronic configurations. Now second property is ionization energy. So ionization energy is amount of energy required to remove most loosely bound electron from valence shell of isolated gaseous atom. कितनी एनर्जी आपको चाहिए किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की, एंड दैट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू आउटर मोस्ट शेल. So in case of lanthanides they have very low ionization value. First ionization is of order 560 kilojoule per mole. फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर आप लैंथेनाइड्स में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज 560 किलो जाउल पर मोल. एंड सेकेंड आयनाइजेशन इज ऑफ ऑर्डर 1150 किलो जाउल पर मोल. इसका मतलब है कि अगर आप उसी लैंथेनाइड आयन में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1150 किलो जाउल पर मोल. एंड दीज आयनाइजेशन वैल्यूज आर क्वाइट कंपेरेबल टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो आयनाइजेशन एनर्जी में आपको एक तो डेफिनेशन याद रखनी है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम. एंड लैंथेनाइड्स हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. First ionization energy is of order 560 kilojoule per mole and second is of order 1150 kilojoule per mole, and these values are comparable to alkaline earth metals because you very well know कि F block elements जो हैं उनके लेफ्ट में S block elements होते हैं, so उनकी वैल्यूज़ जो हैं alkaline metals के साथ काफ़ी comparable है. Next property is melting and boiling points. Talking about the melting and boiling point, so लैंथेनाइड्स जो हैं दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लैंथेनाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है एक्सेप्ट फॉर यूरोपियम 2 पॉजिटिव. 2 पॉजिटिव का मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं. टर्बियम 2 पॉजिटिव, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकले हुए हैं. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इन जनरल इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बट यूरोपियम और टर्बियम का एक्सेप्शनल केस है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. So let's discuss why they have low melting and boiling point. Melting and boiling point depends upon metallic bonding. तो अगर आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जानना है लैंथेनाइड्स का, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, जो मेटल्स में बॉन्डिंग होती है. और मेटल बॉन्ड बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि आपका लैंथेनाइड्स जो हैं कलेक्टिवली 14 एलिमेंट्स वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें और अपना मेटल बॉन्ड कंप्लीट कर सकें. तो इन केस ऑफ दे आर सेइंग कि यूरोपियम एंड टर्बियम देयर आर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इन द वैलेंस शेल. यूरोपियम और टर्बियम के केस में क्या है कि उनके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए नहीं है. सो इनका जो मेटालिक बॉन्ड है वो वीक है, इस करके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या है, लो है. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन द कॉन्फ़िगरेशन. यूरोपियम 4f7, 5d0, 6s2. आप सोच रहे होगे कि F में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S में 2 हैं, 7 + 2 9, सो दे आर कैपेबल ऑफ लूजिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स. बट वाई मैम इज सेइंग कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. बेटा 4f जो है दैट इज द carrying 7 electrons. It is half filled and it is stable configuration. So 4f will not allow electron to lose from itself. So बचा क्या है हमारे पास, 6s. 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ही लूज होंगे, तो यहाँ इसीलिए इसके ऊपर +2 चार्ज है, +3 चार्ज नहीं है. एंड सेम इज़ द केस विद यूटर्बियम. यूटर्बियम के केस में 4f14 है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट कर सकता है मेटालिक बॉन्डिंग में, नॉट 3. बट मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्या होने चाहिए, 3 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग. नेक्स्ट करेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर.
सो लैंथेनाइड्स कलेक्टिवली दे आर कैपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव. तो येस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है रेदर देन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. ऑक्सीडेशन के अंडर को जाते हैं और जो भी एलिमेंट बेटा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. राइट. सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. येस, बिकॉज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है? लो है. तो आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है. रूम टेम्परेचर पे भी कई बार एनर्जी अवेलेबल हो सकती है. सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एग्जाम्पल्स सुनी होंगी हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. हेलोजन्स की बात करें, F के ऊपर -1 होता है, Br के ऊपर भी -1 है, Cl के बाद -1. सो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो फिक्स होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सच केस इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स. लैंथेनाइड्स का क्या है फर्स्ट पॉइंट कि दे शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. मतलब लैंथेनाइड्स की ये खासियत है कि एक से ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिखा सकते हैं. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी क्या है? जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बियर करते हैं? +3. बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो +2 भी दिखाएंगे एंड +4 भी दिखाएंगे. सो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं. +3 तो ऑलमोस्ट सबकी कॉमन ही है कि ऑलमोस्ट एलिमेंट्स जो हैं दे बियर +3. कुछ एक्सेप्शंस हैं जो नहीं +3 बियर करते होंगे, बट 14 में से अगर 10 भी करते हैं तो मेजरली हम कंसिडर करते हैं कि इनमें जो है +3 तो है बट कुछ एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं +4. बेटा यहाँ +2, +3, +4 का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपका एलिमेंट लूज कर रहा है. So let's have an example having +4 oxidation state. Cerium and terbium कहते हैं ये they both show +4 oxidation state. They are capable of losing 4 electrons. क्योंकि 4 electrons lose करने के बाद ये कौन सी configuration attain करते हैं? Stable. Let's have a look on the cerium. Cerium की बात की जाए बेटा, cerium is Xe4F2 6S2. आपको पता है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. F में कितने हैं? 2. तो अगर ये बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, S भी एम्प्टी हो गया, F भी एम्प्टी हो गया. चाहे एम्प्टी है कन्फिग्रेशन, चाहे हाफ फिल्ड है, चाहे फुली फिल्ड है, दे 3 ऑफ देम आर स्टेबल कन्फिग्रेशंस. तो 4 पॉजिटिव इस पे चार्ज आ गया और इसकी कन्फिग्रेशन जिनॉन होगी, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इसलिए स्टेबल है. तो सीरियम की कोशिश होगी कि वो फटाफट क्या बनाए? सीरियम +4. लेट्स टॉक अबाउट टर्बियम बेटा. टर्बियम में क्या है कन्फिग्रेशन? जिनॉन 4F9 5D0 6S2. अब 9 इसमें है, 2 इसमें है. अगर ये F में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो 9 बिकम्स 7. तो 7 इज योर हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन. तो 2 यहाँ से जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे. 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? Xe4F7 हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन. अगेन इट इज स्टेबल. सो टर्बियम की भी कोशिश होगी कि वो टर्बियम +4 बनाए. So these are the examples of +4 oxidation state. Let's talk about europium and ytterbium. यूरोपियम की बात की जाए बेटा, जिनॉन 4F7 5D0 6S2. तो इसमें 4F तो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, सो दे विल नॉट अलाउ कि F में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाए. तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? S से. तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर चले गए तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन गई? जिनॉन 4F7. दिस इज हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन. अगेन इट इज स्टेबल. सो यूरोपियम की कोशिश रहती है कि वो हमेशा यूरोपियम +2 ही बनाए. नेक्स्ट इज योर यटर्बियम. यटर्बियम की कन्फिग्रेशन क्या है? Xe4F14 5D0 6S2. अगर बेटा वो 6S में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज 2 आ जाएगा और उसकी कन्फिग्रेशन अगेन क्या हो जाएगी? स्टेबल. सो फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ क्लियर कि येस लैंथेनाइड्स जो हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. +3 तो कॉमन है बट कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो +2 भी दिखाते हैं एंड कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो +4 भी दिखाते हैं. So this is about the oxidation state. Oxidation state पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि why cerium forms +4 and why europium form +2. तो it is again based on the electronic configuration. आपको उसी पे बेसिस पे आंसर देना होगा. या क्वेश्चन आ सकता है कि why cerium forms +4 not +2 या why europium forms +2 not +4. So all these questions जो हैं उनका आंसर वही है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको कहा है कि यू हैव टू लर्न ऑल द 14 नेम्स, देयर कन्फिग्रेशन एंड देयर सिंबल्स, क्योंकि इस चैप्टर में आपको हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज.
सो कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट लैंथेनाइड्स कि लैंथेनाइड्स जो हैं कभी कभी कुछ लैंथेनाइड्स हमें ऐसे अपीयर होते हैं कि दे आर कलर्ड, ईदर दे आर इन रेड कलर और ब्लू, समटाइम पिंक, ग्रीन एंड सो ऑन. सो लैंथेनाइड्स कलर्ड क्यों नज़र आते हैं इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो एज वेल एज इन एक्वा स्टेट. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि कलर जो है किसी भी लैंथेनाइड आयन का, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड लैंथेनाइड आयन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द 14 एलिमेंट्स. सो लैंथेनाइड आयन इज अ कॉमन नेम फॉर द लैंथेनाइड्स, राइट. सो इसमें 14 के 14 एलिमेंट्स ही कवर होते हैं. सो कलर जो है कहते हैं लैंथेनाइड्स आयन का, दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है. तो एक तो फर्स्ट पॉइंट ये ज़रूरी है कि अगर आपको कलर किसी भी एलिमेंट का जानना है तो मेक श्योर करो कि उस एलिमेंट के पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दूसरा जो है कलर ऑफ लैंथेनाइड आयंस का रीज़न है वो है ट्रांजिशन. आप सबको पता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसमें जो भी कन्फिग्रेशन आप लिखते हो दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट. आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो हमेशा कौन सी स्टेट में रहे, ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, लो, और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा. तो जब भी आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे बाहर से अगर कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल नहीं हो रही है तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन में ही रहे, बिकॉज इट इज़ स्टेबल कन्फिग्रेशन. बट अगर मान लो आपके इलेक्ट्रॉन को किसी भी बाहर सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. अगर हीट एनर्जी है तो हम उसको गर्म करेंगे, अगर लाइट एनर्जी है तो उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे. दोनों केसेस में ही इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. जब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वह एक्साइट हो जाता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. जब उसको एनर्जी मिल गई तो वो लोअर लेवल से जंप मार के कहाँ चल जाएगा, अपर लेवल में. इसको ट्रांजिशन कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच तो गया, बट एक्साइटेड स्टेट बेटा हमेशा ही अनस्टेबल स्टेट होती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तो रहेगा नहीं. तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ऊपर गया है उतनी ही एनर्जी वो री एमिट करेगा, वापस वही एनर्जी री एमिट करेगा और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. क्योंकि जब वो वापस आ रहा होता है वो जो एनर्जी री एमिट करता है बेटा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी. तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि लैंथेनाइड्स चमक रहे हैं, उनका कलर है, बट एक्चुअली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन. एक और लेवल से दूसरे लेवल जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है और वापस अपने लेवल पे आता है, तो इस ट्रांजिशन के दौरान जो लाइट एनर्जी जो है वो इमिट होती है, उससे हमें अपीयर होता है कि लैंथेनाइड्स आर कलर्ड. तो वन रीज़न तो ये भी है. फर्स्ट रीज़न था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसलिए कलर्ड होते हैं. सेकेंड रीज़न क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट जो है आपकी बेटा अनस्टेबल स्टेट है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर वहाँ पे रहेगा नहीं, तो वो वापस आएगा. जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है उतनी एनर्जी वो रीमिट करेगा, क्योंकि वो जो एनर्जी रीमिट कर रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. तो आपको ऐसे अपीयर होता है कि लैंथेनाइड्स आर कलर्ड. सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न कि वाई लैंथेनाइड्स जो हैं वो आपको अपीयर होते हैं कि दे आर कलर्ड. सो लैंथेनाइड्स में बिकॉज 4f ऑर्बिटल्स भरी जा रही हैं, 4r ऑर्बिटल्स ही खाली हो रही हैं, तो बेसिकली जो ट्रांजिशन हो रही है या जो एक्साइटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो बिटवीन द f ऑर्बिटल्स हो रही है. वन f ऑर्बिटल से दूसरी f ऑर्बिटल तक जंप मार रहा है, फिर जो हायर f ऑर्बिटल है उससे वापस f ऑर्बिटल में ही आ रहा है, तो उस ट्रांजिशन का नाम है FF ट्रांजिशन. तो थर्ड पॉइंट जो आता है रिगार्डिंग द कलर ऑफ द लैंथेनाइड्स वो ये है कि लैंथेनाइड्स कलर्ड इसलिए हैं क्योंकि उनमें कौन सी ट्रांजिशन है, FF ट्रांजिशन. अगर आप कन्फिग्रेशन को देखोगे तो डी में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम, उसमें भी डी में इलेक्ट्रॉन गया हुआ है. फिर उसके बाद गैडोलिनियम में भी डी में गया हुआ है, और लास्ट जो ल्यूटेटियम है उसमें भी डी में गया हुआ है. तो थर्ड पॉइंट आता है इनकी कलर का, वो है कि ट्रांजिशन FF ऑर्बिटल्स में नहीं होती, ट्रांजिशन कई बार FD ऑर्बिटल्स में भी होती हैं. तो एज अ रिजल्ट थर्ड या फोर्थ रीज़न क्या हो सकता है कि FD ट्रांजिशंस के कारण भी कई बार आपको लैंथेनाइड्स कलर्ड अपीयर करते हैं. सो जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे आता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, एक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हो. ड्यू टू दीज ट्रांजिशन शार्प लाइन लाइक स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड इन द UV एंड विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, शार्प लाइन्स.
तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिशन हुई है या एक्साइटेशन हुई है? तो हम उसको कनेक्ट करेंगे विद स्पेक्ट्रोमीटर और वहाँ पे हमें ग्राफ में क्लियर कट दीज लाइंस विल अपीयर। तो वहाँ से हम जज कर लेंगे कि येस, इस इलेक्ट्रॉन ने इस लेवल से इस लेवल तक जंप किया है, फिर वापस उसने रीएमिट की एनर्जी, कितनी वेवलेंथ वाली की है, कितनी फ्रीक्वेंसी वाली की है, सब जो रिकॉर्ड है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और उससे हमें ये लाइन लाइक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है। सो इस पेज पे एक क्वेश्चन भी बन के आपके पास आ सकता है कि वाई शार्प बैंड्स आर ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स। सो आपके पास या तो बेटा शार्प लाइंस होंगी या शार्प बैंड्स होंगे। बैंड होता है कलेक्शन लाइक दिस, लाइन होती है आपके पास, ये तो हो गया आपके पास बैंड लाइक दिस, बैंड। लाइन होती है बेटा शार्प लाइन। सो ये आता है क्वेश्चन कि लैंथेनाइड्स के केस में आपके पास हमेशा लाइंस ही आती हैं, आपके पास कभी बैंड्स नहीं आते हैं। वो अगेन रीज़न जो है आप एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनाइड से क्लियर है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में जा रहे हैं, 4f ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन्स किसके काउंट करने हैं, 4f इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के। और क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है तो सारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल। उसने ही इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं, उसमें ही इलेक्ट्रॉन्स की सारी स्टडी होनी है। तो वो जो 4f ऑर्बिटल है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, दैट लाई डीप इनसाइड एंड इट इज़ सराउंडेड बाय 5d एंड 6s ऑर्बिटल्स। अब 4f तो अंदर है, 4f के ऊपर है 5d, 5d के ऊपर है 6s। तो अगर मेटल्स की ऑब्वियस है रिएक्शन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो जब इनको लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स इनके पास लोन पेयर्स होते हैं, जब लिगेंड्स इनको अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो वो 4f तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ना ही 4f की कोई केमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर पाएंगे। इस करके जो भी 4f करेगा, ठीक है, वो उसका अकेले का ही स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होगा, किसी की इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी। नहीं, अदरवाइज सिग्नल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर बाहर से कोई सराउंडिंग से इंटरफेयर करे, क्योंकि 4f ऑर्बिटल तो अंदर लाई करती है। तो इस करके लिगेंड्स उनको अप्रोच नहीं कर पाते। अगर लिगेंड्स अप्रोच नहीं करेंगे तो वो उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। तो इस करके उनके जो सिग्नल्स हैं बहुत शार्प होते हैं रैदर देन स्ट्रॉन्ग बैंड्स। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में जो है वो आता है। स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पहली चीज दिमाग में क्लियर कर लो, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यू विल से दोज कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दोज कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही आप जज कर सकते हैं कि वेदर योर गिवन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। इस पे भी क्वेश्चन यही आएगा बेटा, आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि वेदर इट इज़ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, या क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इट इज़ डायमैग्नेटिक या दिया होगा कि इट इज़ पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। सो आपको कन्फिग्रेशन लिखनी है, उसकी एटॉमिक नंबर लिखना है, कन्फिग्रेशन लिखनी है, फिर जितना ऊपर चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स लूज करके दिखाने हैं, और फिर उस कन्फिग्रेशन से आपको बताना है कि इसमें इतने अनपेयर्ड हैं इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, इसमें सारे पेयर्ड हैं तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। सो पहली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन तो यही आएगा, वेदर द गिवन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास इसमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक